Good evening, everyone. A very warm welcome to all of you. It is truly a pleasure to have you with us today for a very special book launch, one that celebrates imagination, legacy, and extraordinary young talent. Today, we are here to unveil Mark of the Keeper, Veil of Light, a book that takes us into a world of mystery, light, and destiny. I'd like to invite on stage Mr. Sagar Sethia and Ms. Abhijita Gupta. Before we begin, I would like to briefly introduce the publisher behind this book. Invincible Publishers is one of India's leading and most dynamic publishing platforms known for nurturing powerful voices across genres, ranging from academic excellence to imaginative fiction. Ranked among the top publishers in the country, Invincible strongly believes in discovering and supporting unique talent, especially voices that inspire the next generation of readers. Mr. Sagar Sethia, founder and CEO of Invincible Publishers, is known for building a platform where quality, innovation, and emerging voices come together. His passion for education and meaningful publishing has helped Invincible become a trusted name among authors and readers nationwide. Under his leadership, the company has consistently focused on impact driven books that truly add value. Now, it gives me immense pride to introduce the author of this remarkable book, Abhijita Gupta. Abhijita is a young author globally recognized as the world's youngest author, having achieved international recognition at a very young age. She carries forward a rich literacy legacy and has already published multiple books. In addition to her writing, she is a wonderful speaker and has been recognized by leading platforms for her creativity, confidence, and originality. She represents a new generation of writers, fearless, thoughtful, and deeply imaginative. Her journey continues to inspire young minds across the globe. We would like to hear a few words about the book from Abhijita as well. Would you like to say something about the book? Hello everyone. My book is Mark of the Keeper, Veil of Light. This book is a fiction book and it teaches resilience, power, courage, and strength. The main characters are Clara and Nova, and they together overcome obstacles that they may not have been able to overcome had they been not together. I hope that you all read my book and find this as interesting and find pleasure in this as much I did when I was writing it. Thank you. Hello. So, Abhijita, do you remember the exact moment when you actually thought of writing this book and where did this concept come from? It was as if light bulb had been flicked on inside my mind. It all happened in just a fraction of seconds. The one moment I was playing, the second I had this thought, and the third I was already imagining all the characters and scenes inside. So that is really nice. So, Sagar, for you being a publisher, how important is it to support young talent like Abhijita and emerging authors like her? Uh, First of all, thank you, Abhijita and her mom. Actually, if they are believing in Invincible for the opportunity. और आज की डेट में जितने भी आप यंग ऑथर्स को देखेंगे, चाहे अभिजीता है हमारे पास और अगर जो यंग टैलेंट्स हैं, ये इंस्पायर करते हैं आज के आने वाले बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए, कि वो भी राइटिंग में और एजुकेशन को वो आगे बढ़ाए. अगर यही यंग इंस्पिरेशन बाकी के लोग भी लेके जाते हैं आगे, और जो इनके साथ के बच्चे हैं या फिर जो आने वाली जनरेशन है वो इनसे बहुत इंस्पायर भी रहती है. और हम एज अ पब्लिशर हमेशा हेल्प करते हैं कि जितना ज़्यादा हम विजिबिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ किसी भी एक यंग ऑथर को, तो वो उतना ही बेहतरीन हम काम मार्केट में कर पाएंगे. सो जो इस बुक का टाइटल है वेल ऑफ लाइट, इसके पीछे दिस इज लाइक अ वेरी पावरफुल टाइटल, तो इसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस है? In my book, there's
a barrier, which I have described as a whale of life. It represents power, courage, strength, and most of all, the fact that the thing that seems perfect for others may not be the best choice for you. So, keeping all of this in mind, I chose this title. दैट इज़ अ वेरी थॉटफुल कॉन्सेप्ट. सो सागर, आज की डेट में जैसे जितने यंग जनरेशन है, एवरीवन इज़ वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन एंड एवरीथिंग. सो इस जनरेशन को बुक्स रीड करते रहना चाहिए, ये आप कैसे एक मैसेज प्रोवाइड करोगे? आफ्टर कोविड ना बहुत सारे लोग डिजिटल कंटेंट की तरफ या फिर वीडियोस की तरफ इंस्पायर हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना पेपर बैक बुक्स है उसका आज और आने वाले कई सालों तक जो ओरा है और जो उसके थ्रू एक नॉलेज लोगों तक पहुंचता भी है, वो उसको मेरे हिसाब से डिजिटल कभी भी पीछे नहीं कर पाएगा. तो पेपर बैक का आज भी और आने वाले 10, 20, 30 साल आगे मेरे हिसाब से जितना भी टाइम जाने वाला है, पेपर बैक का ओरा अलग है. अगर हम डिजिटली कंटेंट को देखते हैं, चाहे वो हम रील्स के थ्रू देख रहे हैं, चाहे हम वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. कोई भी अगर डिजिटली कोई कंटेंट को ले रहा है तो वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, या तो वो रील्स की तरफ जा रहा है या फिर दूसरे कंटेंट की तरफ जा रहा है. लेकिन जहाँ पे हम हार्ड कवर या फिर पेपर बैक बुक्स में आ जाते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी कम रहता है, तो एक नॉलेज अलग लेवल पे लोग उसको गैदर कर पाते हैं. सो अभिजीता, जब आप ये बुक लिखना स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग पार्ट क्या था उस बुक के? इमोशंस मेंटेन करना, कैरेक्टर्स डिज़ाइन करना, या कंसिस्टेंसी मेंटेन करना? व्हाट वाज द चैलेंज दैट यू फेस्ड? The challenge that I faced was making my the emotions very vivid. Because all of the good books that I've read, Percy Jackson or Harry Potter, when they express the feelings or the scene, it feels as if you are there and that you are actually going through what that character is going through. So, taking them as inspiration, I wanted to make my emotions and scenes as vivid as they were. So, to develop that, that was a little challenging part. Okay. So since we have a lot of authors in the market today and we have Abhijita's book here, so आपके हिसाब से what is the scope of Abhijita's book as a young author in today's time? बेसिकली अगर हम आज की डेट में देखें तो दे आर अराउंड 50,000 प्लस पब्लिशर्स इन इंडिया, और सभी के पास कुछ ना कुछ बुक्स भी पब्लिश हो रहा है. लेकिन अगर हम एक यंग एज से राइटिंग शुरू करते हैं और अपनी एक ऑथर की जर्नी शुरू करते हैं, मैक्सिमम लोग बुक को पब्लिश तो कर देते हैं, लेकिन एक ऑथरशिप लाने के लिए आपको खुद से प्रेजेंट करना पड़ता है. पब्लिशर आपको हेल्प कर सकता है कि बुक को अलग अलग जगहों पे अवेलेबल करा दे, लेकिन मेन पार्ट हमेशा ऑथर के ऊपर ही रहता है कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है. और इतनी यंग एज में आप सब लोगों के सामने बैठ के बोलना भी एक बहुत बड़ा टास्क है. इवन मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता, मैं अपने दिमाग से कई चीज़ें भूल जाता हूँ, लेकिन इस एज में जब मैं था मैं नहीं बोल पाता था. लेकिन इस स्टेज में अगर आप अभिजीता को देख रहे हैं कि वो आप सबके साथ इंटरेक्ट कर रही है या फिर अपनी बुक के बारे में बता पा रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. और इस एज से शुरू करना, और मेरे हिसाब से ऑलरेडी अभिजीता का अराउंड दिस इज़ योर 5th बुक, 4th बुक, और इससे पहले प्रेसिडेंट के पास से इन्हें अवार्ड मिल चुका है, यंगेस्ट ऑथर का अवार्ड मिल चुका है. तो आने वाले कुछ 1-2 साल और 3 साल में मुझे लगता है कि ये एक रेन्यूड ऑथर में इंडिया के टॉप लेवल पे प्रेजेंट होगी. So I think we are going to wait for another book also आपके उस recognition के साथ ही. So जो ये वाली book है, इसमें से कितना part इस book का is your imagination, या is it also inspired by your real life experiences, या जो आप interact करते हो अपनी family के साथ, friends के साथ? Experience comes with age, which I don't have yet, and imagination has no age bar. So most of my imagination finds its way into my writing, and it's that one thing that pushes me towards it. सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा इनकी मोम को, क्योंकि वो ज़्यादा इंस्पायर करती है इन्हें और हमें भी करती हैं कहीं ना कहीं. तो मैम, हम आपसे तो कुछ ना कुछ सुनना ज़रूर चाहेंगे ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर ऑडियंस के पास कुछ सवाल होंगे तो वो पहले बोलें. आप प्लीज़ मैम, आप भी स्टेज पे आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा.
I think first of all we would like to ask you, जैसे since your daughter is doing such wonders, so इतने सारे parents हैं audience में जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या message है to bring more young writers to the society? See, give wings to your child's dreams, thoughts. As parents हम सिर्फ इतना ही मेक श्योर कर सकते हैं कि जो हमारा बच्चा करना चाह रहा है हम उसको प्रॉपर सपोर्ट पाथ ये दे पाएँ. और एज पेरेंट्स अभिजिता के फादर, ग्रैंडफादर, उसके मामा, एवरीबडी इज़ हेयर एंड द एंटायर फैमिली सेलिब्रेट्स वॉट एवर लिटिल शी डज. इट्स नॉट दैट कि अगर उसको वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑथर नहीं मिला होता तो हम इस तरीके से उसको चेयर नहीं कर रहे होते. इट्स जस्ट दैट एज फार एज जब तक वो मोबाइल गेम्स और लैपटॉप से दूर है और कुछ भी क्रिएटिव कर रही है, वी ऑल आर विद हर इन हर जर्नी. अगर मैं थोड़ा भी इंस्पायर कर पाऊँगी किसी पेरेंट को, अभिजिता कर पाएगी अपने पीयर ग्रुप को, अपने साथ के बच्चों को, आई विल फील ब्लेस्ड देन. So as a founder and CEO of Invincible, what responsibility do you think that when such young authors come to you, so आपकी क्या responsibility in shaping them and the next generation of writers? बेसिकली अगर देखा जाए तो एक पब्लिशर के लिए मेन पार्ट यही रहता है कि आपके पास कंटेंट अच्छा है, साथ में हम किस तरीके से उसे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अवेलेबिलिटी के साथ में, किस किस जगहों तक अवेलेबल कर सकते हैं और किस तरीके से एक ऑथर को एक स्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं. शायद ये एक मीडियम है, वरना इंडिया में जितने भी बाकी के बुक फेस्ट होते हैं वहाँ पे बुक्स जाता है या फिर जितने स्टोर्स हैं, तो कोशिश यही रहता है कि जितना हम विजिबिलिटी ला पाएँ. अगेन मैं वही बोलूँगा कि ऑथर जब हम खुद से प्रेजेंट करते हैं और अपनी बुक्स को प्रेजेंट करता है, तब वो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है मार्केट के अंदर. रादर एक पब्लिशर का भी उतना ही हाथ रहता है उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर और उसकी प्रेजेंस के ऊपर कि वो किस तरीके से मार्केट में और बाकी जगहों पे बुक को प्रेजेंट कर पा रहा है. So अभिजीता, जो आपकी बुक में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपने बनाया, इज देयर एनी कैरेक्टर दैट रिजेंबल्स यू या आपने खुद से इंस्पायर होके बनाया हो, एनी ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स? So there's this character Nova. She is Clara's best friend, and I think I am a lot like her, or she's a lot like me, because Nova's helpful and very comical and a little facetious. She doesn't know when not to laugh and when to laugh. She also laughs in serious situations. So, and she always helps others. She's always supporting everyone if they are right, and she shows the right path. So yeah. So we've always seen this also, and आपकी बुक में भी एक मैसेज है that the characters grow through courage. So in real life also, do you think कि ऐसा ही होता है that the people grow through courage and the challenges that they face? Yes, because first of all, the familiarity reduces their fear. If they're doing something multiple times, then they'll not have fear for it anymore, because then their brain will say that this is hard, but I'll handle it, so I can do it. Then they develop confidence over a period of time after they have repeatedly done that. And then their perspective changes. If you look at one thing through only one perspective, then you might not grow as much as when you look through others' perspectives as well. And then you might find that the perspective that you were viewing it through was not the best one for you. मैं ना आपसे पूछना चाहूँगा बेसिकली अगर हम जितने भी जैसे आज के बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान टीवी, मोबाइल्स, रील्स और कहीं पर पेरेंट्स भी उन्हें इन्वॉल्व कर देते हैं उस चीज़ में कि वो अपने लिए एक टाइम निकाल लें, कि उनको हाथ में फ़ोन है और वो अपने लिए एक टाइम निकाल लेते हैं. आप इस तरीके चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो? क्योंकि मैं चाहूँगा कि आने वाले सभी लोगों के बच्चे ऐसे हों, इवन मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी आने वाले टाइम में ऐसे हों, तो उनको हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं और ये जो टाइम मैनेजमेंट है इसको कैसे मैनेज करना चाहिए? That's so sweet of you, Sagar. First of all, अभिजिता जब से हमारी लाइफ में आई है तब से मैंने और इसके फादर ने वी हैव ट्राइड अ लॉट. हमने मेक श्योर किया है कि
टीवी, मोबाइल, गेमिंग से हम इसे थोड़ा सा दूर रख पाएँ। ऑब्वियसली हम 100% वी कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम एनीथिंग, यू नो, पूरी तरीके से कुछ भी बंद नहीं होता है। तो स्टार्टिंग से शी हैज़ बीन ब्रॉट अप लाइक दैट कि आज उसका टीवी का टाइम 20 मिनट्स है। अगर उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो आज उसका टीवी का टाइम सिंस वीकेंड है, और मैं और उसके फादर टीवी देख रहे हैं तो शी हैज़ दैट 40 मिनट्स ऑफ टाइम। तो उसको ये पता है कि उसको 20-40 मिनट्स ही मिलने वाला है। इसके बाद शी हैज़ टू यूज़ हर ब्रेन कि उसको खुद को कैसे एंगेज रखना है। शी इज़ अ यू नो वो किताबों में ही है, उसको रीडिंग हमने स्टार्टिंग, शी वॉज 3 व्हेन शी स्टार्टेड रीडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है बुक्स हैज़ ऑलवेज बीन हर बेस्ट कंपेनियन। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है इफ़ शी हैज़ अ गुड बुक इन हर हैंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स वो वजह रही है जिसकी वजह से अभिजिता मोबाइल और टीवी से खुद को दूर रख पाई है, एंड एज पेरेंट्स हम वो चीज़ मेक श्योर कर पाए हैं। एंड सिंस मेरे पास माइक है, आई वुड लाइक टू थैंक सबसे पहले अजय। ही इज़ हेयर फॉर अभिजिता। अभिजिता में अजय ने तब बिलीव किया था जब कोई भी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था। आई ऑलवेज हैड अ सेल्फ पब्लिशिंग ऑप्शन, पर मुझे उधर जाना नहीं था। एंड अजय वॉज दी वन जिसने अभिजिता का वो टैलेंट देखा और उसको पब्लिश किया। एंड सिंस दैट डे देयर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर अभिजिता, एंड शी इज़ हेयर विद हर 4th बुक। एंड नाउ सागर हैज़ टेकन अप दैट यू नो ड्यूटी जो उसको अजय ने दी है। बट या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इनविंसिबल फॉर ऑल व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ बिकॉज ऑफ इनविंसिबल। सो या अ ग्रेट थैंक यू। Abhijita, so you are now this is your 4th book. Which book do you like most? Like चारों में से अगर एक बुक सेलेक्ट करें जो क्लोज टू योर हार्ट हो, या फिर जो सबसे अच्छा बुक हो, वो कौन सा बुक है? I think it's my first book because it holds a very special place in my heart, it being the first book. That was the first time when I, noticed that I can do this, when I actually understood what writing was, when I took my first leap into writing poems and books and stories. So it would be the first book that is very special to me. Great. So I'm sure there are a lot of people in the audience as well who would like to know more about Abhijita and her books. So we'll open the mic for questions. If anyone have any question, please you can ask. And I would also request Ajay to please come on stage and speak about your little author, since you are here for her. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिजीता। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, पर मैं आपको थोड़ा जर्नी के बारे में बता देता हूँ। फ्रॉम आई थिंक 2020 में हमने वी स्टार्टेड पब्लिशिंग अभिजीता's बुक, फर्स्ट बुक। और मेरी अभिजीता की मम्मी से बात हुआ कि शी हैज़ रिटन अ बुक, एंड फिर मैंने एज पूछा तो इन्होंने बताया कि अभी वो 7 इयर्स की हैं। मैंने कहा 7 इयर्स का बच्चा किताब लिख नहीं सकता, तो मैंने कहा पहले हम लोग मिलेंगे उनसे, फिर हम लोग उसको प्लान करेंगे पब्लिश करने का। फिर अभिजीता के साथ हमारे ऑफिस जो अभी भी वहीं पे है, बट उस टाइम हमारा 2nd फ्लोर पे हुआ करता था। सो वी मेट अभिजीता एंड उनकी मॉम, और उनसे हमने कुछ सवाल पूछे, और उन्होंने मुझे लगता है कि 7 इयर्स की बच्ची का बुक पब्लिश करना एक पब्लिशर के लिए हमेशा चैलेंज रहता है। ऑल्दो अगर आप किसी ट्रेडिशनल पब्लिशर के पास जाएंगे तो वो हमेशा इनकार कर देगा कि हाँ आप पैसे दे के पब्लिश करा लो, सेल्फ पब्लिशिंग में करा लो तो करा लेंगे। पर जब हमारा डिस्कशन हुआ तो हमें एक पॉइंट मिला कि 7 इयर्स का अभी तक पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई ऑथर ही नहीं है। तो अब हमने यंगेस्ट गिनीज बुक में, और एक कौन सा अवार्ड था, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमने उनको अप्लाई किया, और हमें सबसे पहला अवार्ड हमें मिला। देन उसके बाद की जर्नी ये है कि फर्स्ट बुक पब्लिश होने के बाद सब जगह मीडिया में ये था, हमारे ऑफिस में मीडिया वाला है, आज तक वालों का मुझे फ़ोन आया कि आपने पब्लिश किया और ये कैसे पब्लिश हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि अब इस ऑथर के पीछे दूसरे पब्लिशर्स आ जाएंगे, पेंगुइन, हार्पर या कोई भी और भी पब्लिशर होगा। तो मुझे याद है हमने एक बड़ा सा चेक प्रिंट कराया, 1 लाख का चेक था,
3 लाख का, हाँ 3 लाख, अब बहुत पुरानी 2020-21 की बात हो गई, मुझे जो जो याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ वापस ना। तो हमने एक बड़ा सा चेक प्रिंट कराया, मैंने कहा एक बार आप अभिजीता को लेके आना हमारे ऑफिस, और हमने कुछ प्लान किया है। तो मैंने उसी दिन उनको मैंने कहा देखो आपके लिए 3 लाख का चेक है, बट इट्स एक्सक्लूसिव पब्लिशिंग फॉर नेक्स्ट 5 बुक्स। तो अभी हमारे पास 4th बुक आई है, तो नेक्स्ट बुक भी हमारे पास ही आने वाले हैं, बिकॉज हमने उनसे साइन कराया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की जर्नी रही। उसके बाद सागर ने टेक ओवर किया, तो अभी सागर इज पब्लिशिंग, अभी हमारे पास से 4 बुक्स आ चुकी हैं, एंड आई थिंक 5th बुक नेक्स्ट ईयर इन दिस वर्ल्ड बुक फेयर वी कैन प्लान फॉर इट, राइट। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी अभिजीता बड़ी हो गई है, मैं तो काफ़ी टाइम बाद मिला हूँ, 3-4 साल हो गए, पहले छोटी सी थी बिल्कुल। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पेरेंट्स बड़े प्राउड होते हैं कि हाँ 4th बुक आ गया। तो मुझे लगता है कि अब हम एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे कि 100 बुक्स इन 20 ईयर्स, ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू। Thank you. I would like to invite Abhijita's family on stage so we can unveil the book. If you want, you can call them. साथ साथ बोल दो। Right. Mr. Rawat, Mr. Arvind. I'll just call the names. सिर्फ नाम बोल दो because okay. Okay. हाँ ठीक है ठीक है। I'd like to invite Mr. Rawat, Mr. Arvind, CEO of Pharmacin, Mr. Pramod, who is a proud grandfather to Abhijita. Can I also have little Sharvin on stage, please? Can we also have the proud parents on stage, please? Can we have a huge round of applause for our youngest author? Thank you everyone for taking out the time. We would just conclude this session with Abhijita reading maybe a line from the book so that the audience has more to look forward to. As the two girls walked towards an undefined remote spot, Clara couldn't help but wonder if that eventual demise would feature in the next generation's reel of dumb ways to die.
Thank you everyone for being with us here today. Thank you.